આપ સૌને નૂતન વર્ષના ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. દિવાળી પછી ગુજરાત નૂતન સંકલ્પ કરવા ટેવાયેલું છે. નવા આત્મવિશ્વાસ સાથે આગળ વધવા ટેવાયેલું છે અને દિવાળી પછી તરત જ ભાવનગર ઘોઘાની ધરતી પર આવીને સમગ્ર ગુજરાતને રૂબરૂમાં નૂતન વર્ષના અભિનંદન કરવાનો મોકો મળ્યો. હું ગુજરાત સરકારનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું અને જીવનમાં ધન્યતા અનુભવું છું. ઘોઘાના ભાઈઓ અને ભાવનગરમાંથી પણ આવેલા ભાઈઓ, આજનો આ કાર્યક્રમ ભલે ઘોઘા અને દહેજ વચ્ચેનો હોય, પણ આ સમગ્ર હિન્દુસ્તાનને સ્પર્શનારો કાર્યક્રમ છે. એક પ્રકારે સાઉથ ઈસ્ટ એશિયામાં એક નવા સીમા ચિહ્ન રૂપી કાર્યક્રમ છે અને તેથી સ્વાભાવિક રીતે દેશના લોકોની પણ ઈચ્છા આજના કાર્યક્રમ વિષયમાં જાણવાની હોય એ બહુ સ્વાભાવિક છે. અને એટલે આપ સૌની ક્ષમા સાથે આજે હું કેટલીક વાતો હિન્દી ભાષામાં કરીશ અને કેટલીક આપણા ગુજરાતીમાં. गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान विजय रूपाणी जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान नितिन भाई, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान मनसुख भाई, गुजरात सरकार के सभी उपस्थित मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान जीतू भाई, यहां उपस्थित विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको दीपावली और नवीन वर्ष की शुभकामनाओं के साथ अभी हम लोगों ने भाई दूज का त्योहार मनाया, लाभ पंचमी के त्योहार का इंतजार कर रहे हैं और नए संकल्प के साथ नए भारत, नए गुजरात के निर्माण की दिशा में आज एक अनमोल उपहार घोघा की धरती से पूरे हिंदुस्तान को मिल रहा है. आज घोघा दहेज के बीच रोरो फेरी सर्विस का प्रथम चरण का शुभारंभ किया जा रहा है. ये भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है, तो ही दक्षिण पूर्व एशिया का भी ये इतना बड़ा पहला प्रोजेक्ट है. मैं गुजरात के लोगों को, यहां की सरकार को 650 करोड़ रुपयों का ये प्रोजेक्ट अनेक आधुनिक तकनीक के साथ परिपूर्ण करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं. इस प्रोजेक्ट की शुरुआत के साथ 6.5 करोड़ गुजरातियों का एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है.
ભાઈઓ બહેનો, હું જ્યારે નિશાળમાં ભણતો હતો ને ત્યારે અમારા ત્યાં નિશાળમાં એક પદ્ધતિ હતી. રોજે રોજના જે સમાચાર હોય એ બાળકોએ બ્લેકબોર્ડ પર ત્યાં લખવાના હોય ચોકથી, અને જ્યારે એસેમ્બલી હોય ત્યારે એક વિદ્યાર્થીનો જેનો વારો હોય એણે સમાચાર વાંચવાના હોય. બચપણમાં નિશાળમાં એ વખતે સાંભળેલું, અને એ વખતે મોટે ભાગે બળવંતરાય મહેતા મુખ્યમંત્રી હશે, સાંભળેલું કે ગુજરાતમાં ગોગવા દહેજ રોરો ફેરી થરવાની છે. હું જ્યારે નિશાળમાં ભણતો હતો ત્યારે સાંભળેલું કે ગુજરાતમાં ગોગા દહેજ રોરો ફેરી સર્વિસ શરૂ થવાની છે. આટલી બધી સરકારો આવીને ગઈ. ભાવનગરમાંથી એ બધા અડીખમ નેતાઓ આવીને ગયા, પણ સારા કામ બધા મારા નસીબમાં જ લખાયેલા છે. अभी इस मंच से मुझे सर्वोत्तम डेयरी के केटल फील्ड प्लांट के उद्घाटन करने का भी अवसर मिला है. आ डेयरी उद्योग आपने जानीने आघात थशे. गुजरातમાં ભૂતકાળમાં એવી સરકાર હતી કે જેણે કચ્છ કાઠિયાવાડમાં ડેરી ન બને એવા ઊંધા નિયમો બનાવ્યા હતા. અમે આવીને નિયમોને બદલ્યા. એના કારણે આજે કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લે જિલ્લે ડેરીઓ થઈ. ક્યાંક 3 લાખ લીટર દૂધ, ક્યાંક 4 લાખ લીટર દૂધ, ક્યાંક 11 લાખ લીટર દૂધ. અહીંના પશુપાલકોને, અહીંના ખેડૂતોને દૂધના પૂરા પૈસા મળવા માંડ્યા. અને ખેતીમાં કોઈ દી મુસીબત આવે તો દૂધના ભરોસે 12 મહિના નીકળી જાય. એ કામ આ ડેરીના વિકાસથી થયું. આજે લગભગ 65 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે ભાવનગરમાં સર્વોત્તમ ડેરી દ્વારા પશુ આહાર માટેનો વૈજ્ઞાનિક અભિગમ હવે શરૂ થઈ રહ્યો છે. પશુપાલન, એમાં પશુ આહારનું સૌથી વધારે મહત્વ છે. ઉત્તમમાં ઉત્તમ પ્રકારની માવજત થાય પશુની, ઉત્તમ પ્રકારનો પશુ આહાર મળે તો આપણા દેશમાં જે એક મુસીબત છે એ મુસીબતમાંથી આપણે દેશને બહાર કાઢી શકીએ. મુસીબત શું છે? દુનિયામાં સૌથી વધારે પશુ આપણી પાસે, પરંતુ પ્રતિ પશુ જે દૂધનું ઉત્પાદન છે એ દુનિયામાં ખૂબ ઓછું હોય એવા દેશમાં આપણું નામ છે. પશુઓની સંખ્યા ઓછી હોય તેમ છતાં દૂધનું ઉત્પાદન વધારે હોય તો જ પશુપાલકને પાલવે, તો જ ખેડૂતને પાલવે. અને એટલા માટે પશુની માવજત, પશુ માટે આહાર એ અત્યંત મહત્વની બાબત છે. થોડા સમય પહેલા હું ભરૂચ આવ્યો હતો. ગુજરાત સ્ટેટ ફર્ટિલાઇઝર કોર્પોરેશનમાં એક પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. એમાંથી જે ચીજો ઉત્પાદિત થાય છે એ ખાણદાન બનાવવા માટે કામ આવે છે. અને આજે ભાવનગરની ધરતી પર આવીને સર્વોત્તમ ડેરી દ્વારા 65 કરોડના ખર્ચે પશુ આહાર માટે, પશુ ખાણદાન માટે જે પ્લાન્ટનું આજે લોકાર્પણ થઈ રહ્યું છે, હું ભાવનગર જિલ્લાના બધા પશુઓને શુભકામનાઓ પાઠવું છું. આ ઉત્તમ આહાર મળશે એમને. એના કારણે એમની રોગ સામેની પ્રતિકાર શક્તિ વધશે, દૂધનું ઉત્પાદન વધશે અને પ્રમાણમાં ખેડૂતના ઘરમાં પણ 2 પાંદડે જિંદગી જીવવાનો અવસર આવશે. હું ભાઈ મહેન્દ્ર અને એમના સૌ મિત્રોને, ડેરીના સૌ ડાયરેક્ટરોને ઉત્તરોત્તર ડેરીની પ્રગતિ માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ આપું છું.
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक विवाद का विषय है, क्या मनुष्य जात ने सबसे पहले तैरना सीखा था कि पहिया बनाने का सीखा था? कोई तय नहीं कर पाता था कि पहले पहिया बना कि पहले इंसान तैरना सीखा। लेकिन ये सही है कि मानव जात सदियों से तैरकर नाव से नदी पार करना उसने हमेशा सरल माना, आसान माना। गुजरात के तो हजारों साल का सामुद्रिक यात्रा का इतिहास रहा है। नाव बनती यहां थी, नाव लेकर दुनिया में जाने की यहां लोगों की परंपरा थी। लोथल 84 देशों के झंडे यहां पर फहरते थे। वल्भी यूनिवर्सिटी 1700 साल पहले अनेक देशों के बच्चे हमारे यहां वल्भी में पढ़ते थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, सब कुछ इतिहास की तरह नीचे जमीन में दब गया। वो भी तो एक जमाना था। लंकानी लाड़ी ने गोगानो वर, क्या जाहो जलाली होगी घोगा की। आमतौर पर लंकानी लाड़ी ने गोगानो वर એવું કહેવાતું હતું। भाइयों बहनों, आज का ये प्रोग्राम, आज का ये प्रारंभ गोगा, भावनगर और गुजरात के समुद्र तट के वो पुराने भव्य दिवसों को वापस लाने का अवसर है। गोगा दहेज के बीच से फेरी सर्विस सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के करोड़ों लोगों की जिंदगी को ना सिर्फ आसान बनाएगी बल्कि उन्हें और निकट ले आएगी। जिस सफर में 7-8 घंटे लगते थे, वो सफर 1-1.25 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। हमारे यहां कहा जाता है, सबसे मूल्यवान चीज समय होता है। टाइम इज मनी, ये कहा जाता है। आज दुनिया में कोई 24 घंटे के 25 घंटे नहीं कर सकता है, लेकिन ये भारत सरकार और गुजरात सरकार है कि आपके 24 घंटों में से 1 घंटे की सफर करके 7 घंटे की सौगात दे सकता है। एक स्टडी कहती है कि सामान को ले जाने में अगर सड़क के रास्ते 1.5 रुपया का खर्च होता है तो उतना ही सामान ले जाने के लिए रेल के जरिए 1 रुपया लगता है। लेकिन वही सामान अगर हम जल मार्ग से ले जाएं तो सिर्फ 20-25 पैसे में ले जा सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि अपना कितना समय बचने जा रहा है, देश का कितना पेट्रोल डीजल बचने वाला है। वरना लाखों लीटर ईंधन तो जब ट्रैफिक जाम हो जाता है वहीं पर बर्बाद हो जाता है। भाइयों और बहनों, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के बीच हर रोज लगभग 12,000 लोग यात्रा करते हैं। 5,000 से ज्यादा गाड़ियां हर रोज इन दो क्षेत्रों को कनेक्ट करने के लिए सड़कों पर दौड़ती है। जब यही कनेक्टिविटी सड़क के बजाय समंदर से होगी तो 307 किलोमीटर की दूरी 31 किलोमीटर में बदल जाएगी। एक फेरी अपने साथ 500 से ज्यादा लोग, 100 के लगभग कारें, 100 के करीब ट्रकें वे अपने साथ लेकर के जा सकती है। साथियों, जब ट्रैफिक का बड़ा हिस्सा इस फेरी सर्विस पर निर्भर हो जाएगा या जब अपनी अपनी गाड़ियां इधर से उधर ले जाएंगे तो इसका प्रभाव दिल्ली और मुंबई को कनेक्ट करने वाले रास्तों पर भी पड़ने वाला है।
गुजरात के सबसे ज्यादा औद्योगिकरण वाले क्षेत्र जैसे दहेज, बड़ोदरा और उसके पास के मार्गों पर गाड़ियों की संख्या कम होगी, गाड़ियों की रफ्तार बढ़ेगी और तेजी यहां के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को टॉप गियर में ले जाएगी। साथियों, हम पुरानी अप्रोच के साथ नए नतीजे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ना ही पुरानी सोच के साथ नए प्रयोग किए जा सकते हैं। गोगा दहेज फेरी सर्विस इसका भी बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं जब मुख्यमंत्री बना और खोज खबर ली, इस पर चर्चा की, तो कई दशकों से हो गए रहे थे, लेकिन ये योजना पता नहीं किस कोने में पड़ी थी। और जब मैं इस पर जानने लगा, आगे बढ़ने लगा, मेरे आने के बाद मैं चाहता था तुरंत शुरू हो। आप हैरान हो जाएंगे, सरकार ने ऐसी स्ट्रक्चरल गलतियां की थी कि कभी रो फेरी सर्विस हो ही नहीं सकती है। पुराने जमाने में क्या काम किया था इन्होंने? समस्या ये थी कि जिसे फेरी चलानी थी उसी से आग्रह किया जाता था कि तुम भी टर्मिनल बनाओ। क्या मुझे बताइए, रोड के ऊपर कोई बस दौड़ाता है तो बस वाले को हम कहते हैं कि तुम रोड बनाओ, बस वाले को कहते हैं कि बस स्टेशन बनाओ। एयरपोर्ट पर विमान आता है, क्या विमान वाले को कहते हो कि तुम एयरपोर्ट बनाओ? एयरपोर्ट सरकार बनाती है, बस स्टेशन सरकार बनाती है, रोड सरकार बनाती है, उस पर दौड़ने के लिए प्राइवेट लोग व्यापार के लिए आते हैं। रोरो सर्विस में उन्होंने कह दिया है जेटी बनानी है, उसका पोर्ट बनाना है, आपको करना है तो करो, ये समंदर का किनारा है, ये पानी है, आगे बढ़ो। कौन बढ़ेगा भाई? आखिरकार हमने नीतियां बदली, पुरानी सरकारों के इस हस्तक्षेप को हमने बदल दिया। हमने तय किया कि फेरी सर्विस के लिए टर्मिनल बनाने का काम सरकार करेगी, टर्मिनल बन जाने के बाद उसका संचालन और फेरी चलाने का काम प्राइवेट एजेंसी को दिया जाएगा। यहां के रब समुद्र क्षेत्र में तलहाटी में जमीन, मिट्टी भी बड़ी समस्या होती है। इस वजह से फेरी को किनारे तक आने में दिक्कत होती है। बदली हुई रणनीति के तहत सरकार ने यह भी तय किया कि मिट्टी निकालने के लिए, पत्थर हटाने के लिए ड्रेजिंग का काम, उसका काम भी सरकार खर्चा उठाएगी। हमने ये भी व्यवस्था बनाई कि इस सर्विस के बाद प्राइवेट एजेंसी को जो लाभ होगा उसमें सरकार की भी भागीदारी होगी। ये नई रणनीति सफल रही और आज इसी का परिणाम है कि गोगा दहेज के बीच रोरो फेरी सर्विस प्रारंभ हो रही है। 2012 में मैं आया था, इसका शिलान्यास मैंने किया था, लेकिन तब समुद्र में कुछ काम करना है तो हम जरा भारत सरकार पर डिपेंडेंट रहते थे। और भारत सरकार में ऐसे लोग बैठे थे उस समय जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, वापी से लेकर के कच्छ के मांडवी तक गुजरात के समुद्री तट पर विकास पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया था। हमारी सारी इंडस्ट्रीज को पर्यावरण के नाम पर ताले लगाने की धमकियां दी गई थी। मैं जानता हूं कितनी कठिनाइयों से हमने गुजरात को आगे बढ़ाने में सफलता पाई थी, लेकिन जब दिल्ली में आप सबने मुझे सेवा करने का मौका दिया, एक के बाद एक समस्याएं सुलझती गई और आज रोरो फेरी सर्विस का लोकार्पण करने का प्रथम चरण का, और यह प्रोजेक्ट कठिन था। वरुण देव भी हमारी परीक्षा लेते रहे, लेकिन इतिहास गवाह है जब सेतु के निर्माण में किसी तरह की बाधा आई तो समुद्र मंथन में से ही अमृत भी निकल के आया था। साथियों, आज हमें
वरुण देव के आशीर्वाद से ये अमृत मिला है, जो जल सेतु मिला है। मैं शीश झुका करके ये कामना करता हूं कि वरुण देव का आशीर्वाद हमेशा की तरह गुजरात के लोगों के साथ रहे। और आज हम जब ये रोरो फेरी सर्विस का प्रारंभ कर रहे थे, तब मैं वीर मोखड़ा जी दादा को भी नमन करता हूं। और जैसे मेरे मछुआरे भाई बहन वीर मोखड़ा जी दादा को नारियल चढ़ा करके आगे बढ़ते हैं, मैं भी उनकी परंपरा का आज पालन करूंगा। और वीर मोखड़ा जी के आशीर्वाद से हमारी यात्रियों की सुरक्षा बनी रहे, भावनगर और सौराष्ट्र दक्षिण गुजरात का हिस्से की तरह आगे बढ़ जाए, इतनी प्रगति हो। और वीर मोखड़ा जी दादा के आशीर्वाद हम पर बने रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। ये प्रोजेक्ट इंजीनियरों और गुजरात सरकार दोनों के लिए ही एक बहुत बड़ी चुनौती था। इसलिए जो भी लोग इस परियोजना से जुड़े हैं, वे सब के सब बधाई के पात्र हैं। भाइयों और बहनों, गुजरात में देश के सबसे बड़ा सी फ्रंट उपलब्ध है। 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा हमारा समुद्री तट है। सैकड़ों वर्षों से गुजरात अपनी शक्ति और सामर्थ्य से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचता रहा है। लोथल पोर्ट से निकली जानकारियां आज भी बड़े बड़े मरीन एक्सपर्ट्स को अचंभित करती है। जिस जगह पर हम सभी उपस्थित हैं, वहां पर सैकड़ों वर्षों से दुनिया के अलग अलग देशों से जहाज आते रहे हैं। इस समृद्ध विरासत को समझते हुए, देखते हुए, मैं उसी समय से गुजरात में पोर्ट लेड डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, जब आपने मुझे मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया था। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने गुजरात के कोस्टल इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के दूसरे प्रोजेक्टों पर विशेष ध्यान दिया। हमने शिप बिल्डिंग, इसकी नई पॉलिसी बनाई, शिप बिल्डिंग पार्क बनाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में छोटे पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, शिप ब्रेकिंग के नियमों में भी बड़े बदलाव किए गए। सरकार ने स्पेशलाइज्ड टर्मिनल्स के निर्माण पर भी विशेष जोर लगाया। जैसे दहेज में सॉलिड कार्गो, केमिकल और एलएनजी टर्मिनल, और मुंद्रा में कोल टर्मिनल, ऐसे स्पेशलाइज्ड टर्मिनल से गुजरात के पोर्ट सेक्टर को एक नई दिशा, नई ऊर्जा और नई चेतना प्राप्त हुई। इसके साथ ही सरकार ने वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और ग्राउंड ब्रेकिंग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को भी विशेष रूप से बढ़ावा दिया। सरकार आने वाले दिनों में मैरीटाइम यूनिवर्सिटी बनाने और लोथल में मैरीटाइम म्यूजियम बनाने पर भी बहुत विस्तार से काम इन दिनों चल रहा है। इन सारे कार्यों के साथ ही यहां रहने वाले मेरे मछुआरे भाई बंधु और स्थानीय लोगों का भी विकास हो, इसके लिए सागर खेड़ू विकास कार्यक्रम जैसी योजनाएं भी हम लगातार चला रहे हैं। इसी बात पर भी जोर दिया कि शिपिंग इंडस्ट्री में स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें ही रोजगार दिया जाएगा। આપણા સ્થાનિક જવાનોને તૈયાર કરીને, ટ્રેન કરીને એમને આમાં રોજગાર મળે, એના માટે પ્રબંધ કરવાનું નક્કી કર્યું છે। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने के पानी, बिजली के साथ ही हमने कोस्टल सोशल सिक्योरिटी का भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। भाइयों बहनों, अभी हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री आए थे। उस समय हमने जापान के साथ शिपिंग सेक्टर को लेकर के एक महत्वपूर्ण समझौता किया।
इस समझौते के तहत जापान सरकार और वहां की एक वित्तीय संस्था जायका अलंग शिपयार्ड में अपग्रेडेशन के लिए, उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए हमें वित्तीय सहयोग देंगे, हमें धन देंगे, इसके लिए वो तैयार हुए हैं। આપણે ત્યાં અલંગની ચર્ચા ઘણી થઈ। પહેલા વિકાસ માટે ત્યાંના મજદૂરોની સ્થિતિ અને પર્યાવરણના નામે આખા આપણા ઉદ્યોગ પર તોફાન આવ્યું હતું। આ બધામાંથી બહાર કાઢીને એ દુનિયામાં આધુનિક બને એના માટે જાપાન પાસે કરાર કરીને ત્યાંથી ધન લાવીને અહીંના આખા અલંગના અને શિપ બ્રેકિંગના બધા પ્રોજેક્ટને વધારે આધુનિક બનાવવાની દિશામાં કામ કર્યું છે। साथियों, सरकार भावनगर से अलंग सोशिया शिप रिसाइकलिंग यार्ड तक के लिए एक ऑल्टरनेटिव रोड भी, उस पर भी काम कर रही है। एशिया के सबसे बड़े शिप रिसाइकलिंग यार्ड में 15 से 25 हजार कर्मचारी 15 से 25 हजार कर्मचारी काम करते हैं। अलंग सोशिया शिप रिसाइकलिंग यार्ड भावनगर से करीब 50 किलोमीटर दूर है। अभी जो रूट, उस पर ट्रैफिक जाम की कितनी दिक्कत रहती है, मुझे लगता है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए सरकार ने तय किया है अलंग शिप रिसाइकलिंग यार्ड और महुआ, पिपावाव, जाफराबाद, वेरावल को जोड़ने वाला जो एक वैकल्पिक रूट है, उसे चौड़ा किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। भविष्य में अलंग यार्ड की क्षमता भी बढ़ने जा रही है और उसे देखते हुए भी सड़क का आधुनिकीकरण आवश्यक हो गया है। इस रूट से गोगा दहेज फेरी सर्विस के लिए आ रही गाड़ियों को भी फायदा होने वाला है। साथियों, सरकार के लगातार प्रयास का नतीजा है कि गुजरात के कोस्टल बेल्ट का आज इतनी तेजी से विकास हो रहा है। आज गुजरात पूरे देश में छोटे पोर्ट्स के जरिए होने वाले कुल कार्गो की आवाजाही का 32% अकेला गुजरात हैंडल करता है, यानी 1/3 गुजरात में होता है। इतना ही नहीं, इस काम में पिछला 15 वर्षों में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह पिछले 15 साल में गुजरात ने अपनी पोर्ट्स की क्षमता को भी 4 गुना बढ़ाया है, कार्गो हैंडलिंग की रफ्तार भी और तेज होगी। भाइयों और बहनों, गुजरात समुद्री मार्ग की दृष्टि से बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है। यहां से दुनिया के किसी भी भूभाग तक समुद्री मार्ग से पहुंचना बहुत ही आसान और सस्ता और सरल रास्ता है। हमें गुजरात की शक्ति का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। गुजरात का मैरीटाइम डेवलपमेंट भी पूरे देश के लिए एक मॉडल है। मुझे उम्मीद है कि रो-रो फेरी सर्विस का पूरे प्रोजेक्ट भी दूसरे राज्यों के लिए भी एक मॉडल प्रोजेक्ट की तरह काम करेगा। हमने जिस तरह बरसों की मेहनत बाद इस तरह के प्रोजेक्ट में आने वाली दिक्कतों को समझा है, उन्हें दूर किया है, वो दिक्कतें कम से कम इस प्रोजेक्ट को दोहराने वाले राज्यों को कभी नहीं आएगी। इस फेरी सर्विस से पूरे क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास का एक नया दौर शुरू होगा। रोजगार के हजारों नए अवसर बनेंगे। कोस्टल शिपिंग और कोस्टल टूरिज्म का भी नया अध्याय आरंभ होगा। आने वाले दिनों में जब दिल्ली और मुंबई के बीच डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन जाएगा और साथ ही दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का काम पूरा हो जाएगा, तो इस सर्विस समेत
गुजरात से जुड़े समुद्री मार्ग का महत्व भी कई गुना बढ़ जाएगा। ये प्रोजेक्ट अहमदाबाद और भावनगर के बीच के इलाकों में औद्योगिक विकास को तेज करने के लिए बनाए गए धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन को भी एक नई मजबूती देने वाला है। धोलेरा एसआईआर भारत ही नहीं, विश्व के नक्शे पर विकसित होने वाला ये सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र होने वाला है। इससे लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। गुजरात सरकार के प्रयास से धोलेरा में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही वर्षों में धोलेरा पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाएगा और उसमें एक ही भूमिका गोगा दहेज फेरी सर्विस का भी योगदान होगा। साथियों, भविष्य में हम इस फेरी सर्विस को, ये सिर्फ गोगा दहेज तक रुकने वाला नहीं है, भविष्य में इस फेरी सर्विस को हम हजीरा, पीपावाव, जाफराबाद, दमन दीव, इन सभी जगह पर जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। मुझे बताया गया है कि सरकार की तैयारी आने वाले वर्षों में इस फेरी सर्विस को सूरत से आगे हजीरा और फिर मुंबई तक ले जाने के लिए भी चल रही है। कच्छ की खाड़ी में भी इसी तरह का प्रोजेक्ट शुरू किए जाने की चर्चा अभी प्राथमिक स्तर पर चल रही है। मुझे बताया गया है कि कच्छ के वाई और जामनगर के रोजी बंदल के बीच ऐसी सेवा शुरू करने के लिए प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। इतना ही नहीं, जब फेरी सर्विस का इस्तेमाल बढ़ेगा तो तमाम उद्योगों को नर्मदा नदी के माध्यम से भी कनेक्ट किया जा सकता है। साथियों, भारत की विशाल समुद्री सीमा 7,500 किलोमीटर लंबी है, निवेश की बड़ी संभावनाओं से भरी हुई है। मेरा मानना रहा है कि हमारे समुद्री तट देश की प्रगति के गेटवे हैं। भारत की समृद्धि के प्रवेश द्वार हमारे बंदर होते हैं। लेकिन बीते दशकों में केंद्रीय स्तर से इन पर कम ही ध्यान दिया गया। देश का शिपिंग और पोर्ट सेक्टर भी लंबे समय तक उपेक्षित रहा। इस सेक्टर को सुधारने के लिए, उसे आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने सागर माला कार्यक्रम भी शुरू किया है। हमारे यहां कच्छ सौराष्ट्र હંમેશા ખાલી જ થતું જાય, લોકો અહીંથી હિજરત કરતા હતા। કારણ શું? તો પીવાના પાણી નહીં અને ખારા પાડ દરિયાની હવા, ખેતી ન થાય, બાકી કાંઈ ન થાય, રોજી રોટી ન કમાય, લોકો છોડતા હતા। ભૂતકાળમાં દરિયાની તાકાત જો સમજ્યા હોત, પાણીના સામર્થ્યને સમજ્યા હોત, તો કચ્છ સૌરાષ્ટ્રના લોકોને મોટા મોટા શહેરોમાં જઈને ઝુગ્ગી ઝોપડીમાં જિંદગી જીવવા માટે મજબૂર ન થવું પડ્યું હોત। ભાઈઓ બહેનો, અમે જે ઉપક્રમ પાડ્યો છે, આખો કચ્છ સૌરાષ્ટ્રનો દરિયા કિનારાને ધમધમતો કરવાનો, આખા ગુજરાતમાં આવનારા દિવસોમાં ધમધમાટ ક્યાં જોવા મળવાનો છે, તો સૌથી વધારે આ કચ્છ સૌરાષ્ટ્રના દરિયા કિનારે જોવા મળવાનો છે। અમે એવી રીતે બીજ વાવ્યા છે। सागरमाला परियोजना के तहत देश में मौजूदा पोर्ट, उसका मॉडर्नाइजेशन और नए पोर्ट के डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। सड़क, रेल मार्ग, इंटरस्टेट वाटरवेज और कोस्टल ट्रांसपोर्ट को इंटीग्रेटेड किया जा रहा है। ये परियोजना कोस्टल ट्रांसपोर्ट के जरिए माल ढुलाई को बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभा रही है। साथियों, सरकार के प्रयासों का यह नतीजा है कि पिछले 3 वर्षों में
पोर्ट सेक्टर में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और अभी तक का सबसे ज्यादा कैपेसिटी एडिशन पिछले 2 या 3 वर्ष में हुआ है। जो पोर्ट और सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही थी, उनमें भी परिस्थिति बदल रही है। सरकार का ध्यान कोस्टल सर्विस से जुड़ी स्किल डेवलपमेंट पर भी है। एक अनुमान के मुताबिक अकेले सागरमाला प्रोजेक्ट से आने वाले समय में 1 करोड़ जितनी नई नौकरियों के हिंदुस्तान में अवसर पैदा हो सकते हैं। हम इस अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का पूरा फ्रेमवर्क आधुनिक और इंटीग्रेटेड हो। हमारे देश में ट्रांसपोर्ट नीतियों में जो असंतुलन था, उसे भी दूर किया जा रहा है। यह असंतुलन कितना ज्यादा था, वो आप इसी से समझ सकते हैं कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी हमारे यहां सिर्फ 5 नेशनल वाटरवे थे। वाटर ट्रांसपोर्ट में इतना सस्ता होना और देश की नदियों का जल होने का बावजूद इसे नजरअंदाज कर दिया गया। अब इस सरकार ने 106 नेशनल वाटरवे का गठन किया गया है और इस पर तेजी से काम चल रहा है। इन नेशनल वाटरवे की कुल लंबाई 17,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये वाटरवे देश के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के असंतुलन को दूर करने में बहुत मददगार साबित होंगे। हमारी सामुद्रिक संपदा हमारे ग्रामीण और समुद्री तट को एक नया आयाम दे सकती है। हमारे मछुआरे भाई इस संपदा का पूरा इस्तेमाल कर पाएं, इसके लिए सरकार ने ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम को शुरू किया है। उन्हें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मछली पकड़ने और मछली पालन में वैल्यू एडिशन के बारे में सिखाया जा रहा है। हमारा माछीमार भाइयों માટે ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम એમને લાંબી બોટ મળે, આધુનિક બોટ મળે, दूर સુધી 12 નોટિકલ માઇલથી પણ અંદર જાય, વધુમાં વધુ એમને કેચ મળે, માછલી મળે અને પૂરી વ્યવસ્થા અંદર હોય। અમારા માછીમારો ઓછી મહેનતે વધુ કમાય, એના માટે સરકારે ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम के अंतर्गत आज मछुआरों को लॉन्ग लाइनर ट्रॉलर्स के लिए आर्थिक मदद देने का भी योजना बनाई है। एक वेसल पर केंद्र सरकार की तरफ से 40 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। लॉन्ग लाइनर ट्रॉलर्स का न सिर्फ मछुआरों की जिंदगी आसान बनाएंगे, बल्कि वो उनके कारोबार को भी नई आर्थिक मजबूती देंगे। अभी जिस तरह के ट्रॉलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो कम पानी में मछली पकड़ने के काम आते हैं। तकनीक के मामले में भी ये बहुत पुराने हैं, रिस्की हैं। इसलिए जब इन पुराने ट्रॉलर्स को लेकर को वो समंदर जाते हैं तो अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। उन्हें पता तक नहीं चलता कि भारत की समुद्री सीमा छोड़कर दूसरे देश की समुद्र सीमा में पहुंच गए हैं। इसके बाद मछुआरों को कई तरह की दिक्कत उठानी पड़ती है। तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके हम इन दिक्कतों को कम कर सकते हैं और इसलिए हमने ये लॉन्ग लाइनर ट्रॉलर्स की मदद से मछुआरे भाई समंदर में सही दिशा में दूर तक गहरे पानी में मछली पकड़ने के लिए जा सके, इसके लिए सरकार मदद करने की योजना बनाई है। आधुनिक लॉन्ग लाइनर ट्रॉलर्स ईंधन के मामले में भी काफी किफायती होते हैं। यानी मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ उनका व्यापार और मुनाफा दोनों बढ़ाएंगे। साथियों, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। पिछले 3 वर्षों में हाईवे, रेलवे, वाटरवे और एयरवे पर जितना निवेश किया गया है, उतना पहले इतने कम समय में कभी नहीं हुआ है। इसके अलावा
नई एविएशन पॉलिसी बनाकर रीजनल एयर सर्विस को सुधारा जा रहा है। छोटे छोटे हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। कुछ हफ्ते पहले ही अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने वाली देश की पहली बुलेट ट्रेन का भी काम शुरू किया जा चुका है। ये सारे प्रयास देश को 21वीं सदी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम देने का आधार बनेंगे। एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो न्यू इंडिया की आवश्यकताओं, न्यू इंडिया की उम्मीदों के मुताबिक होगा। साथियों, आज यहां गोगा से मैं फेरी के माध्यम से ही दहेज तक जाऊंगा। मेरे साथ मेरे कुछ नन्हे साथी, कुछ दिव्यांग बच्चे भी होंगे। उनके चेहरे की खुशी ही मेरा पारिश्रमिक होगी। મને ગુજરાત સરકારે પૂછ્યું કે આ ફેરીમાં કોણ આવશે? મેં કહ્યું મારા તો 100 સ્પેશિયલ મહેમાનો છે, તમારે લઈ જવા પડશે. તો એમને થયું કે આ બધા હું દિલ્હીથી લાવવાનો છું. મેં એમને કહ્યું કે જે મારા દિવ્યાંગ ભાઈઓ બહેનો છે, પરમાત્માએ જે બાળકોને કંઈ ને કંઈ મુશ્કેલી આપી છે, એ મારા આજે સ્પેશિયલ ગેસ્ટ છે અને એમને આજે હું મારી સાથે આ ફેરી સર્વિસનું ઉદ્ઘાટનમાં જોડે લઈ જઈશ, દહેજ લઈ જઈશ અને પાછી આ ફેરી એમને આવીને મૂકી પણ જશે. ભાવનગરના બાળકો, દિવ્યાંગજનો એમને મારી સાથે લઈ જવા એ પણ મારે માટે એક ગર્વનો વિષય છે. भाइयों बहनों, बचपन से जिस कार्य का सपना देखा था वो पूरा होने के बाद मैंने कैसा अनुभव किया, इसकी कल्पना शायद कोई नहीं कर सकता है. बचपन में जिस बात को सुना था और हो नहीं रहा था, और जब अपनी आंखों के सामने देख पा रहा हूं और खुद को उस काम के हिस्सेदार बनने का मौका मिला, मैं समझता हूं ये मेरे जीवन की एक बहुत धन्य पल है. इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं. दहेज में जाऊंगा, अपने अनुभव वहां बांटूंगा, लेकिन मैं आज आपसे आग्रह करूंगा कि इस महत्वपूर्ण काम में आप हमारे साथ जुड़िए. और एक मानिए, ये एक फेरी सर्विस तो शुरुआत है, ये पहला चरण है. बाद में तो प्राइवेट कंपनियां आएगी, ढेर सारी फेरियां चलेगी, क्रूज चलेंगे, क्रूज टूरिज्म डेवलप होगा. अरे सूरत के हमारे धनी लोग इसको हायर करके जन्मदिन मनाने के लिए भी समंदर में जाएंगे. बहुत बड़ी विकास की संभावना है. और इसलिए मैंने कहा गोगा का भाग्य फिर एक बार बदलने वाला है. गोगा का भार फिर एक बार बदल रहा है. और एक बार फिर आप सभी को गोगा दहेज रोरो फेरी सर्विस और सर्वोत्तम डेयरी के कैटल फीड प्लांट के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. અને ફરી એકવાર તમને બધાને નૂતન વર્ષાભિનંદન અને ખૂબ પ્રગતિ કરો, ખૂબ વિકાસની નવી ઊંચાઈઓને પ્રાપ્ત કરો. ખૂબ ખૂબ આભાર. ભારત માતા की, ભારત માતા की. મારી સાથે બોલીશું, જય વીર મોખરાજી દાદા, જય વીર મોખરાજી દાદા, જય વીર મોખરાજી દાદા.